Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you mathematics. Students, in today's class we are going to start the new chapter of our syllabus, that is congruence of triangles. Okay, so today we'll be having the introduction of what the congruence is all about. Alright, so by congruence, students, we mean the property of having the similar things. Basically, when you're having a book, okay, when you're having two notebooks of same size, same shape, okay, and I'm just letting that one book over the second book, then it means that it is like overlapping the second book, and if its shape, size are all the same, then it means that these two notebooks must be congruent to each other. Alright students, for example, let us see by this particular method. We are taking two stems. These are two stems in front of us. They are just equal in its shape. So students, these two stems are equal in its shape, size and all that stuff. Alright. Now we are having the two stems of same denomination, means that we are having the same length, same breadth and same height, like that. Alright students, when we are having the same denominations and when we are placing one step over the another, what do we observe? We observe that if we are looking from the above portion, like from upright, we are not able to see the second stem, right? It means that these two stems are overlapping each other, and that property is called congruence. Okay, so if one stem covers the other stem completely and exactly, so that we are not able to see the next step, like the stem that is behind the first stem, then it means that these two stems are of same shape, right, and same size, right? Such objects are said to be congruent. तो जिन शेप्स के अंदर अगर हम उनको ओवरलैप करने के बाद उनका हमें पता लगे कि इनका साइज़ भी सेम है और इनका शेप भी सेम है, और उन दोनों को ओवरलैप करने के बाद हम नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था वो नहीं देख पाए, इट मीन्स कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होंगे या वो शेप्स जो होंगी वो क्या होंगी, congruent होंगी. Alright students, so the two stems used by you are congruent to one another. Congruent objects are exact copies of one another. अगर हम congruent shapes की बात करें तो वो बिल्कुल एक दूसरे की exact copies होती हैं. Alright students, अब यहाँ पे देखिए दो बिस्किट्स हैं. For example, if you are having two Parle-G biscuits, और अगर हम Parle-G पैकेज के अंदर आपस में इन सब बिस्किट्स को ऊपर नीचे रखते हैं ना, तो अगर हम उन दोनों बिस्किट्स को ओवरलैप करें, हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ फर्स्ट बिस्किट नज़र आएगा, सेकंड बिस्किट दिखेगा ही नहीं, बिकॉज दीज टू बिस्किट्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर एंड दीज टू बिस्किट्स आर congruent. Okay, for example, these biscuits and these blades also. Okay, when you are having the purchase of that particular one packet of blades, तो हमें सिर्फ ऊपर दिखता है कि एक ही ब्लेड है, मगर अगर उसको खोल के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वहाँ पे बहुत सारे ब्लेड्स थे. ओके, तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं, चाहे आप शेप देख लीजिए, चाहे आप साइज देख लीजिए, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, congruent objects. Alright students, सबसे पहले हम बात करते हैं congruent objects if you are talking about the plane figure, congruency of plane figures. Okay, congruence of plane figures, यहाँ पे फिगर 1 है, ये फिगर 2 है. अगर हम इनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब इन एक दूसरे के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, सुपरपोजिशन की हेल्प से, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है, टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर. हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट देखें, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ट्रेस पेपर रखें, उस ट्रेस पेपर से उसको ट्रेस करें, और अब उस ट्रेस पेपर की जो ट्रेसिंग होगी उसको दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाएं और उसकी डायमेंशंस को उसके अकॉर्डिंग फिट करें. और अगर हमें पता लगे कि जो उसका ट्रेस है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल सुपर इम्पोज कर रहा है, तो हमें पता लगेगा कि ये जो दोनों फिगर्स थी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंसी रखती थी. ओके, so that is why these two figures will be congruent. Okay, looking at the next thing, that is if the figures cover each other completely, अगर एक दूसरे को completely figures cover करें तो मतलब वो congruent है. या फिर हम ट्रेस के अलावा एक काम भी कर सकते हैं, हम उन फिगर्स को कट कर सकते हैं. ठीक है, उसका कट आउट करके अब उसका कट आउट दूसरे फिगर पे लगा के देखिए और हमें पता लग जाएगा कि वो एक दूसरे को completely कवर कर रही हैं क्या नहीं कर रही. If they are covering each other completely, then it means that those figures are congruent figures, and if they are not, then it means कि वो congruent figures नहीं हैं. Okay,
So alternatively, you may cut out one of them and place it over the other. Beware, हमें ध्यान रखना है कि ना तो हमें इसको बेंड करना है ना उसको ट्विस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है. So beware, you are not allowed to bend, twist or stretch the figure. That is cut out or traced out. हमें उसका trace out लेना है या cut out लेना है. Alright students, we have to keep this thing in our mind. The figures that we want to check, that if those figures are congruent or not, we have to just take the trace out and the cut out. Alright students, what do we mean by if these two figures are congruent? So students, if figure 1 is congruent to that of the figure 2, we can say that F1 is congruent to F2, right? We can say F1 is congruent to F2, right? Looking at these two things. Okay, so if F1 and F2 are congruent, we can use the sign of congruency. So students, this is the sign of congruency. What? Like this, then two straight lines. So students, this is the symbol of congruency. Symbol of congruency. तो जब भी हमें बताना होगा कि कोई दो फिगर्स हैं, ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम सिंपली फिगर्स का नाम लिख के या ट्राइंगल्स का या किसी भी लाइन सेगमेंट का नाम लिख के लिख सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट. ओके, लुकिंग एट द नेक्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्ग्रेंसी ऑफ द लाइन सेगमेंट. ओके, सो कॉन्ग्रेंस अमंग द लाइन सेगमेंट्स. यहाँ देखिए हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी एंड सी डी. दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी and this is line segment CD. If two line segments are having the equal measure, that is the equal length, then we can see that those two line segments are congruent to each other. Okay, so students, if two line segments have the same, that is equal length, they are congruent. Also, if two line segments are congruent, they have the same length. सीधी सी बात है, अगर दो लाइन सेगमेंट्स हमें बोल रखी होंगी कि वो कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो ये अंडरस्टूड है कि उनका जो मेजर होगा वो सेम होगा. और इन केस स्टूडेंट्स हमें ये बोला जाए कि ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं और ये दोनों का मेजर सेम है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि वो दोनों लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट होंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे कैसे कि these two line segments are congruent. Write the line segments and use the sign of congruency. It says that line segment AB is congruent to the line segment CD. Alright, looking at the next concept students, that is congruence among the angles. Okay, congruence of angles. There are two angles given to you, that is angle ABC. ABC angle, and this is the angle PQR. Angle PQR. The angles that are having the equal measure, जिन angles का measure same होता है, that angles are congruent. Alright students, and you can use the sign of congruency right like this. So angle ABC is congruent to angle PQR. Alright students, because the measure of these two angles is 40-40 each. Okay, तो हमें पता लगा कि अगर हमें पता हो कि दो एंगल्स का मेजर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंगल्स. एंड इफ वी आर गिवन दैट द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट वी नो दैट द मेजर ऑफ दोज टू एंगल्स आर इक्वल. So if two angles have the same measure, they are congruent. Also, if two angles are congruent, their measures are same. Okay, यही तो बात की कि अगर हमें मेजर बता रखा है कि सेम है, तो इट मीन्स कि वो कॉन्ग्रेंट है. और अगर हमें पता है कि वो कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी ऑब्वियस है कि उनका मेजर सेम है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स. सो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स. अगर दो ट्राइंगल्स की लेंथ ब्रेड्थ बेसिकली सेम हो, उसकी साइड्स का मेजर सेम हो, प्लस उनका शेप सेम हो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर दो ट्राइंगल्स हों, वो सेम साइज और सेम शेप की हों, तभी वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जांपल, एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, एक हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो क्या ये दो ट्राइंगल्स कभी भी कॉन्ग्रेंट होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि ना तो इनका साइज सेम है, ना ही इनका शेप सेम है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, द ट्राइंगल्स दैट आर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज विल बी कॉन्ग्रेंट. ओके, so they are congruent, so we would express this as, this is triangle ABC and this is triangle PQR. Triangle ABC is congruent to that of triangle
PQR. Alright students, so the corresponding parts that we are going to discuss is, अगर हमें बता रखा है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, ऑलराइट, अगर हमें ये चीज़ बता रखी है स्टूडेंट्स, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से हैं, मतलब आपस में बराबर बराबर होंगे ना वो वर्टिसेस, तो जो वर्टेक्स A होगा वो वर्टेक्स P होगा, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मीन्स दोनों इक्वल टाइप में होंगे. फिर B जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, नेक्स्ट Q के. और अगर हम बात करें C की, तो C और R क्या होंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे, मतलब वो वर्टिसेस जो दोनों के ओवरलैप करेंगे. ओके, ऐसा तो नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ABC एंड PQR, अगर मैं यहाँ पे C को P के ऊपर रखूँ, B को Q के ऊपर रखूँ और A को R के ऊपर रखूँ, क्या तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी? नो स्टूडेंट्स. अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे ही इस ट्राइंगल के ऊपर ये ट्राइंगल एज इट इज रखेंगे ना, तभी वो कॉन्ग्रेंट होगी. अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा लूँ, ये बन गई ना QR और P, राइट. अब मैं इसको ऐसे ऊपर रखूंगी तो क्या ये कॉन्ग्रेंट होगी? नहीं होगी ना. सो स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मीन्स इसके ऊपर जो नेक्स्ट ट्राइंगल रखेंगे, हम सुपर इम्पोज करेंगे, उसका वर्टेक्स क्या होगा, उसका वर्टेक्स होगा A का क्या होगा P, B का क्या होगा Q, C का क्या होगा R. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही हम बात करें इधर कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, A का P, B का Q, C का R. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, देन ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, right? तो इसके corresponding sides कौन सी होंगी? For example, if I'm talking about AB side, तो यहाँ से AB और यहाँ से PQ, ये दोनों sides क्या होंगी, आपस में corresponding होंगी. फिर BC की अगर मैं बात कर रही हूँ और QR की, BC और QR, देन अगर मैं बात करूँ AC की, तो ये फर्स्ट टू और ये फिर होगा PR, ये क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, हैव अ लुक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो 3 एंगल्स बनते हैं ना स्टूडेंट्स. 3 एंगल्स में जो एंगल A होगा वो किसके इक्वल होगा, P के, B एंगल Q एंगल के इक्वल होगा और C एंगल R एंगल के इक्वल होगा. ओके, और ये क्या होंगे, corresponding angles. Alright students, so students, based upon this concept we are going to look at an example, that is example number 1 of the 7th chapter. Example 1 is triangle ABC and triangle PQR are congruent under the correspondence. ABC is equivalent to RQP. मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल्स दे तो हमें कॉन्ग्रेंट रही हैं, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी है, ये. ओके, मतलब जो ट्राइंगल, अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की, इफ़ ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगी, उसके पॉइंट्स PQR नहीं होंगे. जैसे ABC मैंने ऐसे लिखा, तो वो यहाँ पे हम PQR ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी है, RQP. ओके, तो कॉरेस्पॉन्डेंस RPQ के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है. अगर A है तो यहाँ पे क्या है, R. फर्स्ट क्या है, A की साइड पे R, B के साइड पे क्या है, Q. तो जहाँ B है वहाँ यहाँ पे क्या है, Q. C के साथ क्या है, P. C to P. सो स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह से रहेगी. और अब अगर आपने ये बना लिया तो आप बाकी के क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है. देखिए कैसे. सो नाउ राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू. अब हमें ट्राइंगल ABC के वो पार्ट्स लिखने हैं जो कि इनसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल P, एंगल P के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एंगल कर रहा है, एंगल C. ओके, एंगल P अगर यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे भी लास्ट वाला ही देखा जाएगा, मतलब एंगल C. यहाँ ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, राइट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल Q, एंगल Q सेंट्रल है, यहाँ पे भी सेंट्रल देखेंगे, मतलब एंगल B. एंगल Q एंड एंगल B, राइट. अब अगर मैं बात कर रही हूँ लाइन सेगमेंट RP की, RP मतलब ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा, AC.
AC line segment. How? RP first and third, AC first and third, right? तो अगर हमने फर्स्टली कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छे से देख ली तो उसके बाद हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, this is the example number 1 of chapter 7. In the next class, students will be discussing the questions of exercise 7.1 with these concepts. Alright, till then students, work hard. We'll be meeting in your next class. Bye bye, have a nice day.